زندہ باد. یہ سیکیورٹی ذرا پیچھے ہو جائیں, مجھے لوگ نظر نہیں آ رہے, پلیز پیچھے ہو جائیں. یہ کیا شور ہو رہا ہے؟ یہ ہیوی بائک پر میرا آواز ہی نہیں آ رہا. حماد, یہ بائک کا انجن بند کرو پلیز. میڈم کی تقریر سنو. حماد بند کرو. جلدی کریں, وشواس صاحب ٹائم ہونے لگے. شائستہ پرویز صاحبہ, علی پرویز صاحب, وہ دیکھو اورنج لائن جا رہی ہے, وہ دیکھو. خواجہ عمران نذیر صاحب, ملک وحید صاحب, میرا بھائی چودھری شہباز صاحب, میرا چھوٹا بھائی سہیل شوکت بٹ صاحب, اور میرا بھائی خرم روہیل, اور NA-119 آپ کی بیٹی مریم نواز آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہے. حمزہ ٹھیک ہو تم؟ یہ حمزہ کھڑا ہے. اس دن میرے آگے گاڑی میں جا رہا تھا, یہ چلتی ہوئی گاڑی سے نیچے گرا, اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹی, ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی. میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا حمزہ یہ کیا کیا تم نے, احتیاط کیوں نہیں کی؟ کہتا ہے نواز شریف پہ ہماری جان بھی قربان ہے. حمزہ اللہ تمہیں سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. NA-119 آج میں نے آج پہلی بار قدم رکھا NA-119 میں, تو میں نے سوچا میں NA-119 سے جا کے اجازت لوں کہ مریم نواز کو یہاں سے الیکشن لڑنے کی اجازت ہے. تو میں تو اجازت لینے آئی تھی, آپ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا آج. اور NA-119 میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں, میری خواتین یہاں پر موجود ہیں, MSF کی بچیاں یہاں پر موجود ہیں, MSF کے وہ بچے وائٹ کیپس میں موجود ہیں. میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا, علی کو یاد ہوگا کہ 2018 میں نے پورے پاکستان سے جس حلقے کا انتخاب کیا تھا الیکشن لڑنے کے لیے, وہ بھی NA-119 تھا. اور علی میرا کورنگ کینڈیڈیٹ تھا. مجھے انہوں نے اٹھا کے نااہل کر دیا. میرے پاس کبھی کوئی عہدہ نہیں رہا, کوئی حکومتی عہدہ نہیں رہا, لیکن نااہل ایسے کر دیا جیسے میں ہمیشہ سے کسی حکومتی عہدے پہ رہی. میرے پہ الزام یہ تھا NA-119, اب یہ میرا گھر ہے تو میں گھر والوں سے بات کرنے آئی ہوں. میرے پہ ایک واحد الزام تھا کہ باپ کے ساتھ کھڑی کیوں ہوئی ہو. تو بتاؤ NA-119 کہ مجھے اسی طرح اپنے والد کا ساتھ دینا چاہیے تھا نا. چاہے جان چلی جاتی, کرسی چلی جاتی, کچھ چلی جاتے, لیکن میں اپنے والد کے قدم سے قدم ملا کر چلی. اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں آج پھر آپ کے درمیان موجود ہوں. اور علی کو میری نااہلی کا فائدہ ہو گیا. علی میرا کورنگ کینڈیڈیٹ تھا, لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں نے اس حلقے کو ایک ایسا بچہ, ایسا نوجوان دیا جس نے جی جان سے آپ کی خدمت کی. ماشاءاللہ. میں آپ سب سے آج ایک بات کرنے آئی ہوں. الیکشن 8 فروری کو ہے, اور میں آج صرف آپ سے ووٹ کی بات نہیں کرنے آئی, میں آپ کو یہ کہنے آئی ہوں کہ ووٹ کی پرچی صرف ایک پرچی نہیں ہوتی, وہ آپ کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے. آپ کے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے, ان خواتین کے, ان بچیوں کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے, ان بچوں کے, نوجوانوں کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے. اور آپ سے 2 طرح کی جماعتیں جو ہیں وہ ووٹ مانگ رہی ہیں.
कुछ जमातें ऐसी हैं, बल्कि नून लीग के अलावा सारी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने किया कुछ भी नहीं, और उनका दिन रात काम यही है कि तनकीद करो, इल्जामात लगाओ। लेकिन एक जमात ऐसी भी है जो ना तनकीद करती है, ना तनकीद का जवाब देती है, ना इल्जामात लगाती है, क्योंकि उसके पास अवाम के लिए जो उसने खिदमत की है उसके इतने मंसूबे हैं कि अगर वही गिनवाने लग जाए तो तकरीरें खत्म हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो हो जा रहे मुस्लिम लीग नून का मंशूर। कुछ जमातें आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है, और आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। पंजाब में आके नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं, ये नहीं पता कि पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। नवाज शरीफ को आपने 3 बार 5-5 साल की हुकूमत दी, टोटल कितने साल बने? 15 साल, और हर बार कभी 2 साल, कभी 3 साल, कभी 4 साल बाद दफ्तर से निकाल कर बाहर कर दिया गया। लेकिन इन आधी अधूरी हुकूमतों में कभी 2 साल, 3 साल और 4 साल, ये 7-8 साल बनते हैं। इन 7-8 सालों में भी मैं नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे गिनवा सकती हूँ, 1500, अल्लाह ताला के फजल से। और बड़ी बात हो रही है, एक शख्स आकर पंजाब में कह रहा है नवाज शरीफ ने अभी तक मंशूर नहीं दिया। वो लोग जानते हैं नवाज शरीफ मंशूर देगा, इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में देगा। लेकिन नवाज शरीफ का मंशूर ये देखो, वो ऑरेंज लाइन है जो ऊपर से गुजर रही है, ये अंडरपास और ये ओवरहेड ब्रिज है जो लाहौर के चप्पे चप्पे पर हैं, ये मोटरवेज हैं, बिजली के कारखाने हैं। नवाज शरीफ ने मंशूर दिया तो उस पर अमल भी किया, सिर्फ कागज पे रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंशूर नहीं दे दिया। और आज भी NA 119 मैं ये बताना चाहती हूँ, आज अली मौजूद था, अली से पूछो, आज भी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक नवाज शरीफ साहब किस चीज पर काम कर रहे थे? नवाज शरीफ साहब इस चीज पर काम कर रहे थे कि अगर अल्लाह ताला ने और आपने मुंतखब किया तो आपके बिजली के बिल हम काम करने हैं, आपके गैस के मसाइल हमने किस तरह हल करने हैं, आपकी तकलीफात हमने किस तरह दूर करनी है, महंगाई जो जिसने गरीब की मजदूर की कमर तोड़ दी, उस महंगाई को हमने फिर से किस तरह कम करना है। एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरता जब नवाज शरीफ इस चीज पे काम नहीं कर रहा होता कि मैंने अपने अवाम की तकलीफों को कैसे दूर करना है। और देखो, लाहौर का दिल बहुत बड़ा है, पंजाब का दिल बहुत बड़ा है। जिस जगह अवाम ने नवाज शरीफ को मैंडेट दिया उस सूबे में भी नवाज शरीफ ने काम कराया, लेकिन जिस सूबे में नवाज शरीफ को मैंडेट नहीं मिला वहां पर भी नवाज शरीफ चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ के खिदमत के निशान। अब मैं खुसूसी तौर पर NA 119, NA 119 से मुखातिब हूं, मैं अपने NA 19 के नौजवानों से मुखातिब हूं, NA 119 की खवातीन से मुखातिब हूं, NA 119 के बच्चों से मुखातिब हूं, NA 119 के बुजुर्गों से मुखातिब हूं। मरियम नवाज शरीफ का ये पहला इलेक्शन है अल्लाह के फजल से और आपकी मोहब्बत से। मेरा और आपका रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन मेरा ये पहला इलेक्शन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं उस वालिद की बेटी हूँ जिसने दिन रात 4 दहाइयों से आपकी खिदमत की है, उस चचा की भतीजी हूँ जिसने दिन देखा ना रात देखी आपकी खिदमत की। तो मुझे एहसास है कि मेरे सर पे और मेरे कंधों पर कितना भारी बोझ है। मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, मुझे एहसास है कि रात आपकी खिदमत करनी है और मैं वो उम्मीदवार बिल्कुल नहीं। जरा गौर से मेरी बात सुनना,
मैं वो उम्मीदवार बिल्कुल नहीं जिसको लोग पर्ची पे लिख के देते हैं कि हमारे ये मसाइल हैं। मैं वो उम्मीदवार हूं जो घर से पता करके आया है कि इस हल्के के क्या मसाइल हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं आपको ये कहना चाहती हूं, मैं जानती हूं कि इस हल्के में सबसे बड़ा मसला गैस की फराहमी का है। मुझे पता है कि यहाँ पर सीवरेज के मसाइल हैं। मुझे पता है कि यहाँ पर जो है वो कुछ गलियों में सड़कें टूटी हुई हैं क्योंकि पिछले 5 साल यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। और मेरा बस चले, वो तो बड़ी कैंपेन करते हैं। क्यों करते हैं भाई? लीडर का सबसे बड़ा हक होता है कि पहले अपने हल्के में जाए। मेरा बस चले तो मैं NA 119 के हर घर का दरवाजा खटखटाऊं और खुद खटखटाऊं और मैं कहूं कि मैं इलेक्शन लड़ने के लिए आपकी उम्मीदवार हूं, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मुझे बताओ, मैं हर घर में खुद जाना चाहती हूं, लेकिन आपने क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां ऐसी लगा दी हैं, मुझे नवाज शरीफ साहब के साथ भी जाना होता है और मुल्क गिर कैंपेन करनी है आपके लिए, आपकी जमात के लिए, इस मुल्क के लिए। इसलिए मेरी टीम्स, मेरी खवातीन और बच्चियों की टीम्स इस वक्त NA 119 के हर गली में मौजूद हैं, कैंपेन कर रही हैं और उनको मैंने जाती तौर पर कहा है कि हर घर का दरवाजा खटखटाना और कहना कि आपकी बेटी मरियम नवाज शरीफ ने आपको आपके पास भेजा है। और जब वो जाती हैं गलियों में तो मैं तस्वीरें मंगवाती हूं, मैं वीडियोस मंगवाती हूं ताकि मुझे ये पता हो कि किस गली का क्या मसला है, किस गली में कूड़े का ढेर लगा हुआ है, किस गली में पानी खड़ा है, किस गली में सीवरेज के मसाइल है, ये मुझे पता है। मैं आपको आज भी गली का नाम बता सकती हूं जहां पर ये मसाइल है। ये सब मैं अपने पीछे से ऑपरेट कर रही हूं। लेकिन मैं ये वादा आपसे करना चाहती हूं कि अगर आपने मुझे मुंतखब किया, अगर आपने यहां से शेर को जिताया, तो मेरा NA 119 से वादा है कि हमेशा के लिए NA 119 में मेरा दफ्तर कायम होगा, जहां मरियम नवाज शरीफ खुद आपसे मुलाकात करेगी इंशाल्लाह। और मैं NA 119 को भी ये कहना चाहती हूं और पूरे पाकिस्तान के अवाम जो शायद टीवी स्क्रीन्स पर मुझे देख रहे हैं उनको भी कहना चाहती हूं, ये वोट अमानत है पाकिस्तान की, ये वोट अमानत है इस मिट्टी की, ये वोट अमानत है इस धरती की, ये वोट अमानत है इन नौजवान बच्चे और बच्चियों की मुस्तकबिल की। अल्लाह ताला का मैं आपको वास्ता देकर कहती हूं, खुदा का वास्ता है, सोच समझ कर वोट डालना, क्योंकि इस वोट ने हमारी नस्लों का फैसला करना है। इस वोट ने आपकी नस्लों की तरक्की का फैसला करना है। हमने ये मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाना। मरियम नवाज शरीफ के बच्चे, जुनैद सफदर और सब बच्चे यहाँ पर ही रहेंगे इंशाअल्लाह। मुझे एक पर्ची मिली है जिस पे लिखा है कि आप कह दें कि ख्वाजा इमरान नजीर को वोट करना है, मलिक वहीद को भी करना है, सुहेल शौकत बट को भी करना है। मैं इनको एक बात कहना चाहती हूं, जब मरियम नवाज शरीफ ने नहीं कहा था ये, तब भी इस हल्के ने इन्हीं को वोट डाला था। और इनको वोट तब देना जब ये 119 में अच्छी कैंपेन करे, वरना मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। मैं यूथ का जो यहाँ पर मौजूद है वो ग्रीन शर्ट्स में मुझे नजर आ रहे हैं। मैं अपनी खवातीन का, इन माओ बहनों बेटियों का, मैं MSF का, इन बच्चियों का, MSF की बच्चियों का, MSF के बच्चों का, मैं माइनॉरिटीज का, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आज NA 119 के मेरे पहले दौरे पर आपने जिन मोहब्बतों और शफकतों से मेरा इस्तकबाल किया है, NA 119 के साथ आज के बाद मेरा ना टूटने वाला रिश्ता बन गया है। और जरा आखिर में मुझे बताना कि NA 119 से, लाहौर से 8 फरवरी को क्या आवाज आएगी? आवाज नहीं आई, क्या आवाज आएगी? और एक मेरा बहुत जरूरी है,
جو میں اپنی خواتین کو, اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو, بزرگوں کو یہ دینا چاہتی ہوں کہ بھلے آپ کو اپنے مقابلے میں کوئی حریف نظر نہ آ رہا ہو یا نظر آ رہا ہو, 8 فروری کو اپنا فرض سمجھ کے اس ملک کی خاطر, اس قوم کی خاطر, اپنی جماعت کی خاطر آپ نے نکل کر صبح صبح اٹھ کر ووٹ ڈالنا ہے. اور صرف ووٹ نہیں ڈالنا, اپنے گھر والوں کو بھی کہنا ہے کہ نکل کر ووٹ ڈالیں, محلے والوں کو بھی کہنا ہے, اپنے دوستوں کو بھی کہنا ہے, سب کو ساتھ لے کر جانا ہے اور ووٹ ڈالنا ہے. وعدہ ہو گیا نا؟ اور آخر میں 2 نعرے لگا دینا, نواز شریف, پاکستان. آپ سب